Hello guys, welcome to my YouTube channel. Let's try. I hope you are doing extremely well. So guys, in this video I am going to see like four job opportunities, okay? So also do like and subscribe to my YouTube channel because it really motivates me for making more videos for you. So now let's see the job opportunity, okay? So here you can see job 1817 hiring contest, okay? In this contest you have to face 18 questions and they are 175 marks and you have to complete this exam in 150 minutes, okay? Just to go to about this contest, okay? So you can see you can see Jove 17 hiring challenge, and in this challenge, you have to face 18 question, and in 18 question, 15 are MCQ and 3 are coding question. Okay, you can see 175 marks, and the exam date is 21st Feb 2023 at 8 p.m. Okay, so you need to register for this exam because I had already registered here, and you need to do just register and attempt this exam because you can see that 23 hours left for this examination. And you can see they about this contest. If you scored good, then you will enroll in these four companies: ab software, advarisk, nimpap, infotech, stride ai, inc, okay, job 18 14 17, 17, and I think I thought it is one of the best contests, and you have to score at least 150 marks for company criteria. Okay, so you can see here apply for this relevant job, and your profile will be only be considered for a company if you have registered for it. Okay, so you can see here the company name Abyss Software, then second one is Advarisk, and the third Nimap Infotech, and the fourth Stride AI Inco. Okay, so you can see this contest consists of four part: three coding question, 100 marks, five MCQs on programming logic, five MCQs on logical reasoning, and the last but not least, five MCQ on aptitude. Okay, you can see only individual participation is allowed in job A contest, and here the main important line: language supported for the DSC problem are C plus Java and Python, because you have to enroll you have to attempt question in these languages: C++, Java, and Python, because they are object oriented. So that's why you have to attend for at least this examination. Okay, so just apply guys, and you can see about this quiz, quiz marks will be added to contest score after the contest gets over. Okay, so you can modify your answers your any number of times during this contest. You have to face 15 questions, 75 marks, they are the MCQs. Okay, and the last but not least, three question, 100 marks. Okay, so you have to attempt this examination, and you can see you have to complete this examination 155 minutes. Okay, just enroll guys, it is good opportunities for you, and you will get so many job hiring. Okay, so just first of all you have to register here because I had already registered, so that's why it's showing registered. Okay, first of all just register and update your form, and after that you can apply guys. Link is in description, so you can find out it easily. So now I'll explain in Hindi. सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में लेट्स ट्राई। आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, आज कुछ नया जानते हैं। तो यहाँ पर एक जॉब 1817 हायरिंग कॉन्टेस्ट है जो कि जीएफजी की ओर से है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपके आपका 18 का आपके में 18 क्वेश्चन होंगे और उसको आपको 175 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एग्जाम डेट इसकी 21 फैब को होगा 8 बजे, एंड लास्ट 10:30 बजे से पहले आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्टेस्ट के अंदर चार कंपनी है, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है, अगर आपका कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो इनमें से चारों कंपनी जो है, इनमें से किसी भी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं कि दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर तीन डीएसए के कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 5 एमसीक्यूज होंगे उन
प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर, 5 MCQs ऑन लॉजिकल रीजनिंग, 5 MCQs ऑन एप्टीट्यूड। ठीक है, तो 25 25 प्लस 25 तो 75 प्लस 100 175, तो 175 का एग्जाम ये आपका होगा। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ओनली इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन अलाउ, मतलब आप अगर आप सिंगल हो, मतलब अगर आप अगर आप सेल्फी देते हो, मतलब कोई भी अपने दोस्तों के साथ नहीं देता, तो उसे सिंगल स्टूडेंट भी दे सकता है। ठीक है, इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड विल बी डन बाय स्पेसिफिक कंपनीज बेस्ड ऑन देयर ओन क्राइटेरिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो आपका इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, वो कंपनी के एग्जाम, कंपनी के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे किसी कंपनी में जो उसकी मार्क्स लगेगा, अब वो 175 में, एटलीस्ट आपको 150 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 150 बहुत ईजी, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इजी आते हैं और 3 कोडिंग क्वेश्चन आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सपोर्टेड। ठीक है, लैंग्वेज सपोर्टेड फॉर दी डीएससी प्रॉब्लम्स आर C++, पाइथन एंड जावा। ठीक है, आपको जो डीएसए का क्वेश्चन होंगे, वो इन 3 लैंग्वेज में से किसी एक में देना है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं हमेशा जावा में देता हूँ, क्योंकि मुझे जावा आती है। ठीक है, क्योंकि मैं जावा में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं जावा में देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको कोई और लैंग्वेज आती होगी, जैसे आपको पाइथन आती होगी अगर आप नॉन आईटी से हो, वैसे अगर आप आईटी से हो तो आपको मोस्टली जावा आती होगी। तो मुझे भी जावा आती है, और इस एग्जाम को मैं भी खुद दूंगा। तो गाइस, लिंक इसकी मेरे डिस्क्रिप्शन में, जस्ट अप्लाई, और जस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से देख लेना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। जो मेन बेसिक इंस्ट्रक्शन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आप आंसर को मॉडिफाई वंस वंस 150 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर मॉडिफाई हो सकते हैं। आप एमसीक्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉन्टेस्ट स्टार्ट इन 23 घंटे 42 मिनट 38 सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको रजिस्टर करना है, देन आपके पास ईमेल, जिस एड्रेस से आप ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर करोगे, देन उसकी लिंक आपके ईमेल में आएगी कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, कि आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो। तो डेट रिमेंबर याद कर लो, आपको 21 तारीख को 8 बजे से आपका कोडिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 150 मिनट का रहेगा। आपको उसमें स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेशन इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में है, तो कंपनी बहुत स्लो हायरिंग हो रही है। और जीएफजी शायद हर वीक, हर मंथली आपका एग्जाम लेता है उसमें, क्योंकि मेरे पास कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास लास्ट कंपनी में मैंने ये एग्जाम दिया था, क्योंकि इससे पहले कोई एक कॉन्टेस्ट और था, ये कुछ जैसे कॉन्टेस्ट 71 है, ये 17 है, तो ऐसे ही मेरा 11 हुआ था, जब जो भी 10 11, तो वहाँ पर मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था कंपनी में। ठीक है, उसके मेरे पास मेल लिंक भी है। ठीक है, अगर आपको लिंक पूछना है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर आप मुझे लिंक दिखा दीजिए कि कैसे शॉर्ट लिस्ट में स्टूडेंट को आता है मेल। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपको कुछ हेल्प लेनी है इस एग्ज़ाम के बारे में, कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको अगर हेल्प लेनी है तो मुझे, जो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है सर, एग्ज़ाम में मुझे आपकी हेल्प लेनी है, तो लेट यू नो योर फ़ोन नंबर, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं एग्ज़ाम में आपकी हेल्प अवश्य करूँगा। ठीक है, जस्ट अप्लाई गाइस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट apply guys, okay? So now see you soon in the next videos. Bye bye.